الرحمن الرحیم حامدا ومصلی وسلم عما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تعلمون۔ سامعین و حاضرین ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اور اے حبیب، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھے تو بے شک میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی۔ جب وہ مجھے پکاریں تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ کہیں وہ سیدھی راہ پا جائیں۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں معاف فرمایا، تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے صبح صادق کے وقت، پھر پورا کرو روزوں کو رات تک اور نہ مباشرت کرو عورتوں سے جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے پاس بھی نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حکام کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ تم لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ سامعین و حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے جو پہلی آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ یہ تلاوت فرمائی، اس کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے میرے بارے میں یہ آپ سے پوچھیں محبوب کہ آپ یعنی کہ میں کہاں ہوں، میرا کیا مقام اور کیا مرتبہ اور کون سی منزل ہے، تو آپ ان کو فرما دیجئے کہ میں کیا ہوں، قریب ہوں۔ اس آیت کے شان نزول کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اہل کتاب کے کچھ حضرات نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمارے قریب ہے یا ہم سے دور ہے؟ اگر ہمارے قریب ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ سرگوشیوں سے کلام کریں، اور اگر وہ ہمارے سے دور ہے تو ہم کیا کریں؟ چلا چلا کر اس کو پکاریں، بلند آواز سے اس کو کیا کریں؟ پکاریں۔ تو نبی کریم علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے جواب دیا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے کیا ہوں؟ قریب ہوں۔ اور اس کا دوسرا شان نزول یہ بھی ہے کہ سرکار علیہ السلام کے کچھ یار، کچھ صحابہ اکرام وہ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ہمارے قریب ہے تو کیا ہم اس کے ساتھ سرگوشیوں سے کلام کریں، یا وہ ہم سے کیا دور ہے تو ہم کیا کریں؟ چلا چلا کر بات کریں؟ تو رب تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری شہرگ سے بھی کیا ہے؟ قریب ہے، تم اس کے ساتھ سرگوشیوں میں سے بھی کلام کر سکتے، تم اس کے ساتھ کیا ہے اگر آہستہ بات کرو تو بھی کیا ہے؟ بات کر سکتے ہو۔ جیسے کہ ایک روایت ہم نے پیچھے بھی بیان کی تھی، یہاں پر بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو موسیٰ الاشعری اس روایت کے راوی ہیں کہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ کچھ صحابہ وہ کسی وادی پر، بلند وادی پر جا رہے تھے یا کسی وادی سے نیچے اتر رہے تھے، تو انہوں نے بلند آواز کے اندر تکبیر کہنا شروع کر دیا، بلند آواز کے اندر تکبیر اور ذکر کرنا شروع کر دیا۔ تو اب سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا انکم تدعون سمیعا قریبا وهو معکم، فرمایا کہ تم اپنی جانوں پر نرمی اختیار کرو، تم کسی غائب کو یا تم کسی بہرے کو پکار نہیں رہے، تم اس کو پکار رہے ہو کہ جو سننے والا ہے اور تمہارے قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہی رہتا ہے، اور تم
وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تو اس لیے کیا کرو تم اپنی جانوں پر نرمی کر کے آہستہ سے کیا کرو اس کو پکارو۔ اس روایت کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار نے یہ ارشاد فرما دیا کہ رب تعالیٰ تمہاری شہرت کے بھی کیا ہے قریب، اس لیے رب تعالیٰ خود فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا کہ ہم تمہاری شہرت کے بھی کیا ہے قریب ہیں۔ تو جب رب تعالیٰ ہماری شہرت کے بھی کیا ہے قریب ہے تو وہ ہمارے دل کے حال سے بھی کیا ہے وہ مطلع ہے، دل کے حال سے بھی کیا ہے وہ واقف ہے۔ اس لیے چاہے ہم بلند آواز سے اس کو کیا کریں پکاریں، چاہے آہستہ آواز سے اس کو پکاریں، چاہے سرگوشیوں کے حق پکاریں، چاہے دل کے اندر صرف خیال کے طور پر ہی رب تعالیٰ کا تذکرہ کریں، تو وہ ہمارے دلوں کے اندر آوازوں کو جانتا ہے، دلوں کے اندر خیالات کو، سوچوں کو، فکروں کو، تدبروں کو جب وہ جانتا ہے تو اس لیے اس کے ساتھ کوئی بلند آواز کہنے کی ضرورت کوئی نہیں، چلانے کی ضرورت کوئی نہیں، آہستہ سے بھی کلام کرنے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر ارشاد فرمایا اجیب دعوۃ الداعی اذا دعانی، جب میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں اور اس پکار کو کیا کرتا ہوں میں قبول فرماتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ بندے کے ذہن کے اندر یہاں پر اشکال آتا ہے کہ یہاں پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی پکارنے والا، دعا کرنے والا دعا کرتا تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں اس کی دعا کو کیا کرتا ہوں جواب دیتا ہوں۔ ایسے دوسرے مقام کے اندر ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے کیا کرو مانگو، تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں کیا کروں گا تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا اور میں تمہاری دعاؤں کو کیا ہے اس کو اجابت کا صحرا پہنا دوں گا۔ اب یہاں پر بندے کے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ ہم تو کیا کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہماری دعاؤں کو کیا قبولیت نہیں ملتی، دعائیں کیا ہو رہتی قبول نہیں ہو رہتی۔ تو اس لیے پہلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ دعا کے قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی غرض یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر دین کو صحیح طریقے سے ڈالا نہیں ہے، ہم نے اللہ کے احکام کو اپنے اوپر لاگو نہیں کیا۔ جب ہم اپنے اوپر اللہ کے احکام کو لاگو کر لیں گے تو پھر جب بندہ رب کا بن جاتا ہے تو پھر رب بندے کا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جو ہی بندہ اپنی زبان سے کچھ لفظ بھی نکالتا ہے تو وہ پورے ہو کر رہتے ہیں، رب تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے وہ ضرور بے ضرور قبول فرماتا ہے اور اس کو کیا کرتا ہے پورا کرتا ہے۔ لیکن ہم چند وہ جواب دیتے ہیں کہ بندہ اگر دعا کرے تو وہ کیا ہوتی قبول نہیں ہوتی، ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ یہاں پر کیا ہو رہی قبول ہو رہی ہے۔ ہم چند وہ جواب پیش کرتے ہیں کہ جو جواب مفسرین کرام نے دی ہے۔ پہلا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں پر جو ارشاد فرمایا گیا اجیب دعوۃ الداعی اذا دعانی، جب میرا بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ اس کے اندر دعا کا معنی ہے اطاعت کرنا، یعنی کہ میرا بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کو قبول کرتا ہوں، یعنی کہ میں اس کو ثواب عطا کرتا ہوں۔ تو جب اس کا معنی یہ ہو کہ دعا کرنے سے یعنی کہ وہ بندہ نیکی کرے، کوئی اطاعت کرے، کوئی عبادت کرے تو رب تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یہ تو کیا ہے ماننے کے اندر آتا ہے کہ ثواب عطا ہوتا ہے بندے کو جب وہ بندہ کیا کرتا ہے نیکیاں کرتا ہے۔ ایسے ہی اس کا دوسرا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا ہے کہ یہ جو دعاؤں کی قبولیت ہے یہ قبولیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت پر کیا ہوتی ہے موقوف ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو وہ دعا تب قبول ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو اگر وہ رب تعالیٰ نہیں چاہتا تو وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ جیسے کہ رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، فرمایا کہ تمہاری جو دعائیں ہوتی ہیں ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے پورا کرتا ہے، وگرنہ پورا نہیں کرتا۔ اسی معنی اور مفہوم اور مطلب اور مقصد کو بیان کرنے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یستجیب اللہ لأحدکم ما لم یدعو باسم او قطیعۃ رحم او یستعجل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے جب تک کہ تم کوئی گناہ نہ کرو یا قطع رحمی نہ کرو یا تم دعا کے اندر جلدی نہ طلب کرو۔ صحابہ نے عرض کی ومن استعجال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ گناہ نہ کرنا یا قطع رحمی نہ کرنا، لیکن یہ کیا مطلب ہے کہ ہم جلدی طلب کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ یقول قد دعوتک یا رب قد دعوتک یا رب فلا اراک یستجیب فلا اراک یستجیب لی فیستحسر عند ذلک فیدع الدعاء۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ استعجال کا، جلدی طلب کرنے کا یہ کہ بندہ دعا کر کر کے تھک جائے کہ وہ قبول نہ کرے تو وہ بندہ رب سے شکوہ کرنا شروع کر دے اور وہ کہے اے میرے رب میں نے تجھ سے دعا مانگی، اے میرے رب میں نے تجھ سے دعا مانگی لیکن تو نے میری دعاؤں کو کیا کیا قبول نہیں کیا، تو وہ بندہ حسرت کے مارے
उस वक्त हसरत करके अफसोस करके दुआ करना क्या कर दे, छोड़ दे। तो हुजूर ने फरमाया कि ये इस्तेजाल कर रहा था, इस सूरत के अंदर दुआ कबूल नहीं होती। तीसरी वजह यहां पर यह इरशाद फरमाई गई है कि जो रब ताला ने उजीबु दावत दाई, उजीबु का माना है अस्माओ, यानी कि मैं सुनता हूं, लेकिन ये लाजमी नहीं है इससे कि रब ताला सुनकर इसको क्या करे, अता भी करे और दे भी। जिस तरह के वालिद अपने बच्चे की हर बात को, हर फरमाइश को सुनता है, लेकिन वो हर फरमाइश पूरी नहीं करता, वो देता नहीं। कुछ फरमाइशें वो पूरी कर देता है, कुछ फरमाइशें वो दे देता है, और कुछ फरमाइशों को वो क्या कर देता है, अधूरा छोड़ देता है। ऐसे ही गुलाम अपने मालिक से हर फरमाइश कहता है, लेकिन मालिक हर फरमाइश को गुलाम की क्या है, पूरी भी नहीं करता, कुछ फरमाइशों को पूरा करता है और कुछ को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे की हर दुआ को सुनता जरूर है, लेकिन पूरी वही करता है जिसको वो चाहता है, और कई को वो क्या कर देता है, छोड़ देता, पूरा नहीं करता। तो इसलिए यहां पर इसका यह माना है कि रब ताला सुनता तो जरूर है, लेकिन अता कभी कभी करता है। और चौथा जो इसका माना वो ये लिखा हुआ है कि अगर किसी के मुकद्दर में ये लिखा हुआ है कि जो इसने दुआ मांगी है वो अता की जाएगी, तो अब दुआ मांगने की वजह से अल्लाह ताला उसको अता कर देता है। और अगर उसके मुकद्दर में ना लिखा हुआ हो तो अब उस दुआ की वजह से वो उसको अता नहीं किया जाता, लेकिन इस दुआ को आखिरत के सवाब के लिए क्या कर लिया जाता है, जमा कर दिया जाता है, या आखिरत के सवाब के लिए जमा कर दिया जाता है, या दुनिया के अंदर इसके ऊपर कोई मुसीबत आ रही होती है तो अब इस दुआ की बरकत से वो मुसीबत क्या हो जाती है, उसे टल जाती है। इसलिए हदीस पाक के अंदर आता है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मा अलल अर्द रजुल मुस्लिम यदुल्लाह ताला बिदावतिन इल्ला आताहुल्लाहु इय्याहा, फरमाया कि जो मुसलमान भी अल्लाह से कोई दुआ करता है तो अल्लाह उसको क्या कर देता, अता कर देता। दुआ या तो मांगता है जैसे ही बंदा, तो अब वो दुआ मांगने के बाद अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को क्या कर दिया, पूरा कर दिया और उसको अता कर दिया। या फरमाया औ कफ्फा अन उसुआ मिसलहा, फरमाया कि अगर अता नहीं की उसने दुआ, जो दुआ मांगी थी अल्लाह ने अता नहीं की, तो फरमाया कि उससे, उस दुआ के बदले, उस दुआ की वजह से दुनिया के अंदर कोई उसके ऊपर कोई मुसीबत आ रही थी, कोई परेशानी आ रही थी, तो उस परेशानी को क्या कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। फरमाया मालम यदु बिस्मिन औ कतियत रहम, फरमाया कि जब तक के कोई बंदा कोई गुनाह ना करे और कता रहमी ना करे, तो अब ऐसी सूरत के अंदर जब तक दुआ मांगता रहता है अल्लाह उसको या तो क्या करता रहता है, अता करता रहता है, या अगर अता ना करे तो दुनियावी तौर पर उस पर कोई मुसीबत, कोई परेशानी आ रही थी तो उस परेशानी को क्या कर दिया जाता है, टाल दिया जाता है, या ये एक आखिरत के सवाब के लिए उसको क्या कर दिया जाता है, जमा कर लिया जाता है। अभी हमने वो माना बयान कर दिए कि जो इन आयतों के अंदर जाहिरी तौर पर क्या है, तारुज और तनाफुज आ रहा था, तो हमने ये कोशिश की है कि उठा दिया जाए इस तारुज और तनाफुज को। अब हम यहाँ पर कुछ रिवायात वो जिक्र करते हैं कि जो दुआ की फजीलत पर क्या है, दाल है। ये याद रखिए कि हमारे इन इलाकों के अंदर, हमारे इस मुआशरे के अंदर ये हमारी सोच बन चुकी है कि कुछ हजरात क्या करते हैं कि वो पीरों के पास जाकर, मज़ारों के ऊपर जाकर, अल्लाह के वली की बारगाह के अंदर जाकर वो क्या कर रहे होते हैं, हाथ उठा कर क्या कर रहे होते हैं, दुआ मांग रहे होते हैं। वहां जाकर तो वो दुआ करते हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर आकर अल्लाह से डायरेक्ट नहीं मांग रहे होते, और वहां जाकर अल्लाह के वली की बारगाह के अंदर तो दुआ करते हैं, हालांकि वो वली भी अल्लाह का ही मोहताज है, उसने भी अल्लाह के सामने ये हाथ गिराने हैं, उसने भी गिर गिरा के अल्लाह से ही दुआ मांगनी है। लेकिन हमारी ये जो चब्बल अवाम है, अगर हम इनको ये कहे कि डायरेक्ट अल्लाह से मांगो तो वो हमारे गले पड़ जाती है, हमारे साथ लड़ने के लिए क्या हो जाती है, वो तैयार और आमादा हो जाती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि क्या अल्लाह के वली का क्या वास्ता ना डाला जाए, तवस्सुल और वसीला ना डाला जाए हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, बिल्कुल डालना चाहिए, लेकिन हक ताला खुद इरशाद फरमाता है कि तुम मुझसे डायरेक्ट मांगो, किसी के वसीले के बगैर मांगो, मैं तुम्हें क्या करूंगा, अता करूंगा। रिवायत के अंदर आता है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह से ही मांगो, अगर तुम्हारी जूती का एक तस्मा भी क्या हो जाए, टूट जाए, तो तुम अल्लाह से ही मांगो। ऐसे ही फरमाया कि अगर तुम्हारे खाने के अंदर नमक नहीं है, नमक की तुम्हें क्या हाजत और जरूरत है, तुम नमक भी क्या है, अल्लाह से ही मांगो। अब नमक क्या है, एक कलील दर्जे की चीज है। अब ये भी हुजूर फरमा रहे हैं कि डायरेक्टली तौर पर किससे मांगो, अल्लाह से मांगो। तो फिर जो बंदे जाकर पे क्या है मांगते हैं कि अल्लाह तू हमें औलाद अता फरमा, और वो कहां जाकर मांग रहे होते हैं, अल्लाह के बारगाह, अल्लाह के औलिया की बारगाह के अंदर।
तो क्या उन औलिया ने तुम्हें क्या देनी, औलाद देनी? ऐसा नहीं है हरगिज़। देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। इसलिए क्या है, हक ताला से डायरेक्टली तौर पर बंदा क्या मांगे, घर में बैठकर मांगे तो भी उसने अता करना अगर उसके मुकद्दर के अंदर हुई, और अगर मस्जिद के अंदर बैठकर डायरेक्टली तौर पर उससे मांगे तो भी उसने अता करना अगर उसके मुकद्दर के अंदर हुई। ऐसे ही अगर वो अल्लाह के वली की बारगाह के अंदर भी चला गया तो भी अगर उसके मुकद्दर के अंदर हुई तो भी क्या मिलेगी, अगर मुकद्दर के अंदर ना हुई तो अल्लाह ताला उसकी तरफ से क्या है, नजर रहमत ना फरमाकर उसको क्या धिक्कार दिया जाएगा, अता नहीं की जाएगी। इसलिए हम वो रिवायात जिक्र कर रहे हैं कि जो इस बात पर दलालत करती हैं कि दुआ क्या है, मांगनी चाहिए। पहली रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि हदीस कुदसी है जिसके अंदर रब ताला इरशाद फरमाता है, आना इंद ज़न्न अब्दी बी व आना माउ इज़ा दआनी। हुजूर ने फरमाया कि रब ताला इरशाद फरमाता है कि मेरा बंदा मेरे बारे में जो गुमान करता है मैं उसके साथ उसी के मुताबिक क्या करता हूं, अमल करता हूं, और जब वो मुझे पुकारता है, दुआ करता है, तो मैं उसके पुकार का जवाब देता हूं और उसी के साथ होता हूं उस वक्त। दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा यदैहि इलैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़्रा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब जिंदा है, इज्जत वाला है, और उसको इस बात से हया आती है कि जब बंदा, उसका कोई बंदा हाथ उठाए उसकी तरफ दुआ मांगे, अब वो उसको कुछ अता ना करे, खाली हाथ क्या कर दे, उसको लौटा दे, तो यह तो अल्लाह ताला को हया आ रही होती है इससे। ऐसी दूसरी रिवायत, तीसरी रिवायत के अंदर आता है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही इज़ा रफ़अ अल अब्दु यदैहि अन यरुद्दहुमा हत्ता यजअल फीहिमा खैरन। हुजूर ने फरमाया कि मेरा रब जिंदा है, हय्य करीम है, और उसको हया आती है कि जब बंदा मोमिन उसकी तरफ हाथ उठाता है तो वो उसको क्या करे, खाली लौटा दे ना, वो खाली नहीं लौटाता बल्कि उसके हाथों के अंदर कुछ न कुछ खैर बरकत डाल कर क्या करता है, वो खाली नहीं लौटाता बल्कि खैर और बरकत डाल कर लौटाता है। चौथी रिवायत के अंदर आता है कि हुजूर मोहम्मद ला यरुद्दुल क़द्र इल्ला दुआ वला यज़ीदु फिल उम्र इल्ला अल बिर। हुजूर ने फरमाया कि कदर को, तकदीर को वही चीज क्या है तब्दील कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ दुआ, और उम्र के अंदर वो चीज इजाफा करती है जो क्या, वो नेकी वाला काम। अब ये याद रखिए कि तकदीर की दो सूरतें, एक है तकदीर मुअल्लक और एक है तकदीर मुबरम। तकदीर मुबरम वो होती है कि जो अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हो कि ये ऐसा होकर ही रहेगा, और तकदीर मुअल्लक वो होती है कि जो अल्लाह की तरफ से ये हुक्म होगा तो ऐसे ही, लेकिन अगर किसी ने इसके लिए दुआ कर दिया, इसने खुद दुआ कर दी, इस तकदीर को क्या कर दिया जाएगा, तब्दील कर दिया जाएगा। तो ये याद रखिए जो फरमाया ला यरुद्दुल क़द्र इल्ला दुआ, दुआ तकदीर को क्या कर देती, तब्दील कर देती, तो इससे मुराद क्या, तकदीर मुअल्लक है। पांचवी रिवायत के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, अब दुआ यनफउ मिम्मा नज़ला व मिम्मा लम यंज़िल फअलैकुम इबादुल्लाह बिद्दुआ। हुजूर ने फरमाया कि दुआ तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आए या ना आए, उस चीज के अंदर क्या करती है, नफा जरूर भी जरूर देती है। तो है अल्लाह के बंदो, तुम क्या करो, हर वक्त अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ मांगते रहो। छठी रिवायत है कि हुजूर ने फरमाया, उदुल्लाह व अंतुम मूकिनून बिल इजाबति वअलमु अन्नल्लाह ला यक़बलु दुआ मिन क़ल्बिन गाफिरिन लाहिन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि तुम अल्लाह से इस हाल में दुआ मांगो कि तुम ये यकीन रखो कि हुजूर अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर भी जरूर दुआ को क्या करेंगे, कबूल करेंगे, और दुआ का जो है ना, जो समरा है, दुआ को कबूल करने के बाद जो पुकार है वो जरूर भी जरूर अता की जाएगी। वालमू, और ये जान लो, ये जान लो और ये जानो और ये समझो कि अल्लाह ताला गाफिल दिल से, जो बेपरवाह दिल हो, उस दिल की दुआ कभी कबूल नहीं फरमाता। अभी हमने 5-6 रिवायात ऐसी जिक्र की हैं कि जिनके अंदर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की फजीलत के ऊपर बहुत बड़ी अजमत को बयान किया है, उसकी फजीलत को बयान किया है। इसलिए हमारी अवाम अहले सुन्नत से गुजारिश है कि अगर दुआ मांगनी है तो डायरेक्टली तौर पर अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। हाँ, अगर अल्लाह के वली का क्या वसीला पेश किया जाए तो इसके अंदर भी कोई हर्ज कोई नहीं है। अगर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वसीला पेश किया जाए तो इसके अंदर भी कोई हर्ज नहीं है। आइए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उहिल्ला लकुम लैलतस सियाम रफ़सु इला निसाइकुम, इस आयत के अंदर रोजों के मुताल्लिक कुछ तफसील बयान की है। ये याद रखिए कि इब्तिदा इस्लाम के अंदर पहले गुरूब आफ्ताब के बाद उनके लिए खाना खाना जायज था, इफ्तार करना जायज था, लेकिन जब वो इशा के बाद सो जाते तो अब सो जाने के बाद उनके लिए खाना पीना, उनके लिए जिमा करना, ये क्या हो जाता था, हराम हो जाता था। तो अब कुछ सहाबा इकराम उन्होंने खाने पीने के यानी कि सोने के बाद उठे रात के वक्त
تو उनको कुछ ख्वाहिश का इजहार हो तो उन्होंने अपनी बीवी के साथ क्या कर लिया, जिमा कर लिया। तो अब ये मसला खड़ा हो गया, तो वो हुजूर की बारगाह के अंदर आए तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से ये हुक्म जो उनके लिए क्या था, जान फिजा था, वो अच्छा हुक्म जो उनको मुल्दा जहां मिला, वो हुजूर की तरफ से ये था कि मेरा रब फरमाता है कि रात के वक्त तुम्हारे लिए बीवियों के पास जाना, वती करना रोजों की हालत के अंदर तुम्हारे लिए क्या जायज करार दिया गया है, तुम क्या कर सकते हो, जा सकते हो। फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम तुम लिबासुल लहुन, बीवियत तुम्हारे लिए क्या है, लिबास है, और तुम उनके लिए क्या लिबास हो। इसका मतलब और मकसद ये है कि जिस वक्त बंदे अपनी बीवियों के साथ रात के वक्त जिमा करते हैं तो वो लिबास उतार कर करते हैं, तजर्रुद की हालत के अंदर जब वो मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ तो अब वो एक दूसरे को जिस वक्त गले लगाते हैं तो वो एक दूसरे का क्या बन जाते हैं, लिबास बन जाते हैं। तो जिस तरह लिबास कपड़ा बदन को क्या कर देता है, छुपा देता है, उसको क्या होता है, ढक रहा होता है, ऐसे ही मियां बीवी भी एक दूसरे के जिस्म को क्या कर रहे होते हैं, छुपा रहे होते हैं, ढक रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पर उनको लिबास फरमाया गया। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम, इसका मतलब वही है कि तुमने जो खयानत की, यानी कि जो तुम्हारी से जो गलती हो गई कि तुमने क्या कर लिया, जिमा कर लिया, तो उसके ऊपर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बख्शिश और तौबा को क्या कर लिया, कबूल फरमा दिया, और तुम्हें क्या कर दिया, माफ कर दिया। तो अब तुम्हारे लिए मुबाशरत करना बीवियों के साथ रात की हालत के अंदर क्या है, जायज है, इसलिए तुम वती करो और मकाम हर्स के अंदर करो, यानी कि अगले मकाम के अंदर करो, और अल्लाह ने जो तुम्हारे मुकद्दर के अंदर जो आल औलाद लिखी हुई है उसी को तलब करो। यहाँ वक्त इसके अंदर मुफस्सिरीन किराम ये इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो तुम्हारे लिए आल औलाद लिखी हुई है उसको क्या करो, तलब करो। इससे उलमा ने ये निकाला है, कहते हैं कि मकाम फर्ज के अंदर, पिछले मकाम के अंदर औरत के वती करना क्या है, हराम है, इसके अंदर वती नहीं की जाएगी। आगे वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, फरमाया कि तुम खाओ पी यहां तक कि सफेद डोरा फजर के वक्त काले डोरे से क्या हो जाए, जाहिर हो जाए। इसकी तफसीर यह है कि हजरत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो एक सहाबी हैं, उन्होंने इस लफ्सी माने को हकीकी लुगी माना पर मकबूल करके अपने पांव के साथ एक काला धागा और एक सफेद धागा बांध दिया। तो अब सुबह हो गई तो भी क्या है, वो काला और सया धागे के दरमियान फर्क नहीं कर सके, तो वो हुजूर की बारगाह के अंदर आ गए। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाया गया कि सफेद धागा काले धागे से क्या हो जाए, जाहिर हो जाए। अब मैंने तो क्या है, फर्क नहीं कर सका, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा के फरमाया कि मिनल फज्र की भी क्या है, मतलब क्या कि फजर के वक्त है, ये सफेद और काले धागे का कोई एतबार कोई नहीं, वक्त का एतबार है, यानी कि तुम्हारे लिए तुलूए फजर के वक्त जो है ना, खाना पीना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये याद रखिए कि यहां हमारे इन दियार के अंदर, हमारे इन इलाकों के अंदर कुछ हजरात ऐसे हैं कि जो अपने आप को आले हदीस के साथ क्या करते हैं, मौसूम करते हैं। वो एक रिवायत बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त मुअज्जिन अजान दे और तुम्हारे हाथ के अंदर खाने का बर्तन हो तो तुम अपनी आदत को उस बर्तन से पूरे करो, अगरचे क्या मुअज्जिन अजान भी दे रहा हो। तो अब ये याद रखिए कि अगर इस रिवायत के ऊपर अमल कर लिया किसी बंदे ने और रोजे की जो है ना उसने सेरी कर ली अजान के वक्त, तो उसका रोजा क्या हो जाएगा, फासिद हो जाएगा, टूट जाएगा, उसको कज़ा करना क्या हो जाएगा, लाजिम हो जाएगा, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। अब वक्त के काम के बाद उसने क्या किया है, खा पी लिया है, और ये जरूरी है कि तुलुए फजर के बाद खाना पीना क्या हो जाता है, हराम हो जाता है। तुलुए फजर के बाद बंदा खा पी नहीं सकता। लेकिन ये जो हदीस पाक है, इसका माना और इसका मतलब क्या है, मकसद क्या, हम इसका जवाब ये देते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी रिवायत के अंदर खुद इरशाद फरमाया, ला यमनउकुम मिन सुहूरिकुम अज़ान बिलाल वल फज्र मुस्ततीर वलाकिन अल फज्र मुस्तज़रा फिल उफुक। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि तुम्हें हजरत बिलाल की अजान तुम्हारी सहरी से मना ना करे, और ना ही फज्र मुस्ततीर तुम्हें मना करे, बल्कि फज्र मुस्तज़र जो उफक में होती है वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, रोजे को बंद करने वाली हो जाएगी। इस बात को समझने से पहले ये याद रखिए कि फजर की दो किस्में, एक फजर सादिक और एक फजर काज़िब। फजर काज़िब वो होती है कि जो उफक के आसमान के अंदर लंबाई की शक्ल के अंदर क्या होती है, जाहिर होती है, फिर वो लंबाई की शक्ल के अंदर जो सफेदी जाहिर होती है, फिर उसके बाद फिर काला अंधेरा छा जाता है, इसको कहते हैं फजर काज़िब। और एक होती है फजर सादिक। फजर सादिक वो होती है जो उफक के आसमान के अंदर चुड़ाई की शक्ल के अंदर क्या हो जाती है, सफेदी आती है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारा काला अंधेरा छूट जाता है, खत्म हो जाता है, इसको फजर सादिक कहते हैं।
جو हुजूर ने फरमाया कि हजरत बिलाल की आजान तुम्हें सहरी से क्या करे, मना ना करे, तुम सहरी कर सकते हो, और तुम्हें फजर मुस्तकील भी धोखा ना दे, इससे मुराद फजर काज़िल। उस वक्त क्या है, सहरी का वक्त होता है, बंदा सहरी कर सकता है, और जो फजर सादिक के उस वक्त सहरी का वक्त क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे ही दूसरी रिवायत के अंदर हुजूर ने खुद फरमाया, ला यमनउकुम अज़ान बिलाल मिन सुहूरिकुम फइन्नहु युनादी बिलैल फकुलू वशरबू हत्ता तस्मऊ अज़ान इब्न उम्म मक्तूम फइन्नहु ला युअज़्ज़िनु हत्ता यत्लुअ अल फज्र। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़ान तुम्हें धोखे में न डाले कि तुम सेहरी से क्या हो जाओ, रुक जाओ, बल्कि वो हजरत बिलाल इसलिए क्या करते हैं, अजान देते हैं कि रात के वक्त कि तुम खा लो पी लो और तुम क्या करो, तहज्जुद की नमाज क्या करो, अजान अदा करो। हाँ, जब अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम अजान दें उस वक्त तुम क्या कर दो, छोड़ दो, क्योंकि उस वक्त क्या है, तुलुए फजर हो जाता है। अब इस रिवायत से यह मालूम होता है कि हुजूर के दौर के अंदर दो अजानें दी जाती थी। एक अजान जो तहज्जुद के वक्त दी जाती थी। अब तहज्जुद के वक्त जो अजान दी जाती थी उस वक्त खाना पीना क्या होता था, हराम नहीं होता था, खा पी सकता था, वो सहरी का वक्त होता था। और दूसरी रिवायत जो हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम दिया करते थे वो अजान हुआ करती थी जो तुलुए फजर के बाद नमाज फजर के लिए दी जाती थी। उस वक्त खाना पीना क्या हो जाता था, हराम। लेकिन हमारे दीवार के अंदर ऐसी अजान दी जाती है जो तहज्जुद के लिए नहीं दी जाती बल्कि तुलुए फजर के बाद नमाज फजर के लिए दी जाती है। इसलिए इस आजान का एतबार करके अगर कोई बंदा खाए पिए तो वो क्या हो जाएगा, रोजा तोड़ने वाला हो जाएगा, उसका रोजा होगा ही नहीं, वो कज़ा करेगा। ऐसे ही रोजों के मुताबिक हम कुछ बात ये भी जिक्र करते हैं कि ये याद रखिए कि सौमे विसाल यानी कि एक बंदे ने मगरिब के वक्त इफ्तारी की, इफ्तारी करने के बाद फिर उसने क्या कर लिया, रोजे की नियत कर ली, अब उसने दोबारा रोजा रख लिया, नफली रोजे। तो सौमे विसाल रोजे रखना क्या ममनू है, जायज कोई नहीं। रिवायत के अंदर आता है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इससे मना फरमाया, फरमाया अन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिल विसाल क़ाल इन्नका तुवासिल। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम सौमे विसाल से मना किया करते थे। अब सरकार से सहाबा ने अर्ज की, हुजूर आप रखते हैं तो हम क्यों ना रखें। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लस्तु मिस्लकुम इन्नी अतअमु व अस्की। हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हारी मिसाल नहीं हूं, मैं खाता भी हूं और पीता भी हूं। दूसरी बात के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला तुवासिलु क़ालू इन्नका तुवासिलु। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम सौमे विसाल ना रखो। सहाबा ने अर्ज की, हुजूर आप भी तो सौमे विसाल रखते हैं। सरकार ने फरमाया इन्नी लास्तु का अहद मिनकुम इन्नी अबीतु अतअमु व अस्की। हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हारी मिसाल नहीं हूं, मैं रात भी गुजारता हूं और मैं खाता भी हूं और पीता भी हूं, इसे तुम मेरी मिसाल नहीं बन सकते। और दूसरी रिवायत के अंदर हुजूर ने फरमाया कि इन्ना रब्बी युतइमुनी व यस्कीनी, मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है, तो जब रब मुझे खिलाता है पिलाता है तो लिहाजा तुम मेरी मिसाल हो भी नहीं सकते। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एतकाफ की फजीलत को बयान किया। एतकाफ से मुराद यह है कि कोई बंदा किसी वक्त को मुअय्यन करके मस्जिद के अंदर अल्लाह की रजा की खातिर बैठ जाए, इसको क्या कहते हैं, एतकाफ कहते हैं। फिर रमजान के आखिरी अशरे के अंदर एतकाफ में बैठना ये क्या है, मसनून है। हम एतकाफ की फजीलत के ऊपर दो चार रिवायात बयान करते हैं कि जिसकी वजह से अवाम अहले सुन्नत को पता चले कि एतकाफ की कितनी बड़ी फजीलत है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया इन्नहु मुतकिफु जुनूब व यजरी लहु मिनल अज्र का अज्र आमिल हसनात कुल्लिहा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि जो बंदा एतकाफ करता है वो गुनाहों से रुकने वाला है और उसके लिए उतना अजर, उतनी नेकियां लिख दी जाती हैं कि जो बंदा पूरी नेकियां करने वाला हो तो उसको जितना अजर मिलता है। दूसरी रिवायत के अंदर हुजूर ने फरमाया मन इतकाफा यौमन इब्तिगा वजहिल्लाह जअलल्लाहु बैनहु व बैन अन्नार सनासा खनादिका अबअद मिम्मा बैनल खाफिकैन। हुजूर ने फरमाया कि जो अल्लाह की रजा की खातिर एतकाफ बैठता है तो अल्लाह ताला उसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों की मिसल क्या है, बाल लगा देता है और उसके दरमियान क्या कर देता है, इतना फासला कर देता है कि वो जहन्नम के अंदर दाखिल नहीं होगा। तीसरी रिवायत के अंदर आता है कि हुजूर ने फरमाया माने इतकाफ अशरन फी रमजान कान का हज्जतैन व उम्रतैन। फरमाया कि जो बंदा रमजान के आखिरी अशरे के अंदर एतकाफ में बैठता है और मैं उसके लिए 2 हज और 2 उम्रे करने के क्या है, सवाब है। आगे फरमाया तिलका हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा, ये हदें हैं, यानी कि जो अहकाम हमने बयान किए हैं रोजे के हवाले से, ये अल्लाह की हुदूद है, इनको पार न करो, पार न करो, इनके करीब भी मत जाओ। अल्लाह ताला ने ये निशानियां तुम्हारे लिए इसलिए बयान की हैं कि तुम क्या करो, तकवा इख्तियार करो। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, फरमाया कि तुम एक दूसरे का माल रिश्वत के तौर पर, सूद के तौर पर, हराम के तौर पर, चोरी के तौर पर ना खाओ।
یہ नाहक माल खाना तुम्हारे लिए जायज नहीं बल्कि क्या है, हराम है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ला यहिल्लु लिम्रिन अन याखुज़ माल अखीहि बिगैर हक़्क़िहि व ज़ालिका लिमा हर्रम अल्लाहु माल मुस्लिम अल मुस्लिम। फरमाया कि किसी आदमी के लिए ये जायज और हलाल नहीं है कि वो अपने भाई का माल बगैर हक के लेकर अपने ऊपर क्या करे, खर्च करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसलमान का मुसलमान के ऊपर माल क्या किया हुआ है, हराम किया हुआ है। ऐसे ही एक और रिवायत के अंदर आता है कि कोई, ये याद रखिए कि कोई आदमी ऐसे होते हैं कि जो गैर के माल को अपना माल बनाकर पेश करते हैं, फिर उसके ऊपर दलाइल भी देते हैं और अदालत के अंदर ये मामला पहुंच जाता है। फिर ये जो गैर का माल गसब करने वाला होता है, ये इतना शातिर और तेज और चालबाज होता है कि इसने अपने गवाह भी बनाए हुए होते हैं। अब गवाह बनाने के बावजूद जो जज के सामने गवाह पेश करता है तो वो जज शाहिद को मानकर, गवाहों को मानकर वो फैसला कर देता कि ये माल इसका हकीकत के अंदर इसका माल नहीं होता। तो इसके ऊपर जरा रिवायत सुनिए कि हुजूर ने फरमाया इन्नमा अना बशरुन व इन्नकुम तख्तसिमूना इलैया व लअल्ल बअदकुम यकून अलहन बिहुज्जतिही मिन बाज़िन फअक़ज़िय लहू अला नहव मा अस्माउ मिन्हु। हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह बशर, मैं एक बशर ही हूं, तो मेरे पास क्या कोई झगड़ा लेकर आते हो, कोई मुकदमा लेकर आते हो, और यह भी मुमकिन है कि कोई तुम में से कोई दलाइल के अंदर कभी हो वो चपर चपर करने वाला हो, दलाइल सही तरीके से पेश करने वाला हो। अब मैं उसके दलाइल जाहिरी तौर पर देखकर, समझकर, सुनकर उसके हक में फैसला कर दूं। अमन कज़ैतु लहू बिशैइन मिन हक़्क़ि अख़ीहि फला याख़ुज़न लहू फ़इन्नमा अक़तअु लहू क़ित्अतम मिनन नार। हुजूर ने फरमाया कि अगर मैं उसके दलाइल सुनकर उसके भाई का जो हक है, जो माल है, वो उसके हक में फैसला कर दूं जो कि हकीकत में उसका माल है, नहीं है, तो फरमाया कि वो ना ले। क्यों? क्योंकि मैं गोया के जहन्नम का एक टुकड़ा उसकी गोद के अंदर रख कर दे रहा हूं। अब जिससे पता चलता है कि जज अगर फैसला कर भी दे, इसको तो पता है ना कि ये माल हकीकत के अंदर मेरा नहीं है, ये उसका है, इसलिए इसको चाहिए कि वो ना ले, क्योंकि हकीकत के अंदर ये माल इसका नहीं है, उसका है। तो जब इसके पास ये माल आएगा तो ये जितने दिन खाता रहेगा गोया कि ये जहन्नम के अंदर अपने आप को क्या कर रहा है, डाल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हक ताला ने सही मानों के अंदर समझ अता फरमाए।